All right, let's get into the word. चलिए वचन में जाएंगे। Matthew 24, मत्ती का 24वां अध्याय and let's read from verse 37. और आइए पढ़ेंगे उसके 37वें वचन But से। as the days of Noah were. जैसे नूह के दिनों में हुआ। You see, this phrase is a very prophetic phrase. आप देखते हैं ये कथन यहाँ पे जो संदर्भ है बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। Jesus, when he was speaking about the end times, he would say, as the days of Noah were. और देखिए जब यीशु मसीह यहाँ पर अंतिम समय के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि जैसे नूह के दिनों में हुआ। And he says, so the coming of the Son of Man will be. और वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। So we need to understand what happened in the times of Noah. तो हमें समझने की जरूरत है कि नूह के जमाने में क्या हुआ था। Because at that time, things changed drastically. क्योंकि उस समय पर हम देखते हैं कि चीजें एकदम नाटकीय तौर पे बदल गईं। And here God speaks, the Lord speaks here. और यहाँ पर प्रभु कहता है। I want you to listen carefully. और ध्यान से सुने। Look what he says. देखिए वचन क्या कह रहा है। In the days that were before the flood, there was eating and drinking. और देखिए क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में उस दिन तक लोग खाते पीते थे। Eating and drinking. लोग खाते और पीते थे। Marrying and giving in marriage. और उनमें विवाह और शादी के कार्य हो रहे थे। Until the day that Noah entered the ark. जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा। And then what happened? और फिर क्या होता है? He says, and knew not until the flood came. और फिर जब तक जल प्रलय नहीं आया। And they took them all away. और उन सबको बहा न ले गया। Except the 8 people in the ark. और सिर्फ वो जहाज में के 8 लोगों को छोड़कर। Also so will be the coming of the Son of Man. और वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। You see, in these verses, आप देखते हैं इन वचनों में there's a lot of it hidden. और बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। And I want you, if you are wise enough to listen, wise enough to understand, और देखिए अगर आप बुद्धिमान हैं सुनने के लिए और समझने के लिए। you will listen and do and change your life. और देखिए आप सुनेंगे और इसका पालन करके अपनी जिंदगी बदल देंगे। The first one. पहला है। You see, the coming of the Lord will be without any warning. और देखिए प्रभु का आना बिना किसी चेतावनी के होगा। In fact, as I'm preaching this message, that itself is a warning. और दरअसल देखिए जाए अभी जो कहा जा रहा है देखिए यही एक चेतावनी जैसा है। But what will happen is, ये क्या होगा? many will be unprepared. Why? और देखिए बहुत सारे लोग देखिए तैयार नहीं रहेंगे। क्यों? I'll tell you, listen very सुनिए carefully. ध्यान से। This is a secret that you must understand. और देखिए एक रहस्य आपको समझने की जरूरत है। Many will be unprepared. और बहुत सारे लोग बिना तैयारी के होंगे। Why? क्यों? You see, when you hear a message again and again, क्योंकि देखिए जब आप संदेश बार बार सुनते हैं the Lord is coming. प्रभु आ रहा है, The Lord is coming. प्रभु आ रहा है। You know, we sort of become deaf to that message. और देखिए हम उस संदेश के लिए फिर अपने आप को बहरा बना लेते हैं। How many of you following me right now? ये तो समझ। We become deaf to that message. उस संदेश के लिए हम अपने को बहरे बना लेते हैं। Why? क्यों? Because we've heard it so many times. क्योंकि कई बार हमने सुन लिया है। Oh, not again. Oh, दोबारा नहीं। I know the Lord is coming. और मुझे पता प्रभु आ रहे हैं। Now we've heard it so many times over the years. The message is being preached. The Lord is coming. The Lord is coming. The Lord is coming. और कई बार हमने संदेश को सुना, सालों से जो है ये संदेश प्रचार होता आ रहा है कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, And, प्रभु आ रहा है। And nothing really happened. और कुछ बाद में कुछ होता नहीं है। So people become very relaxed. People become very docile, very casual. तो लोग एकदम हल्का रवैया अपनाने लगते हैं, एकदम ढीले ढाले बन जाते हैं। Look at somebody and say, because you heard the message again. और किसी को देखकर कहें क्योंकि संदेश को आपने दोबारा सुना। Again and again, especially the बार-बार। Christians. और खास करके मसीह लोग। How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त। You see, one day, देखिए एक दिन a relative of ours, he came from Mangalore. और हमारे एक रिश्तेदार मैंगलोर से आए। Hello, are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? Yes. Mangalore बोला किसका कान खड़ा हो गया. Listen. सुनिए। So, you know, we come from a place in Mangalore. तो देखिए हम मैंगलोर के ऐसी जगह से आए हैं। And we come from a place called Karkala, you know. और कारकाला नामक जगह In मैंगलोर से। Mangalore. It's very rural. It's, you know, we're not city people. We are simple people, you know. और देखिए Farmers. एकदम देखिए शहर के लोग नहीं, लेकिन देखते हैं कि गांव के किसान लोगों में से। Hello, are you with me right now? सुन रहे हैं? Yes. So there it's like very quiet. तो देखिए वहां पर एकदम खामोशी होती है। So quiet that you can hear the silence. इतना ज्यादा सन्नाटा कि देखिए आप खामोशी में कुछ सुन भी सकते हैं। खामोशी को सुन सकते हैं. Hello, are you there right now? साथ में हैं आप? It's like literally your ears are itching to hear something. और इतना जैसे कि आपके कान एकदम सचेत हो जाते हैं सुन रहे। You know, कुछ सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं. From there, one relative came in our house. और फिर वहां से हमारे घर में एक रिश्तेदार आए। Now our house is very close to the flight path. हमारा घर जो है फ्लाइट जो उतरती है जो वहां पर एकदम करीब। So, you know, so a flight came, big, hey, he looked outside the window, you know. So I said, okay, first time, okay, you know. तो ठीक है हमने कहा चलो। He said, my God, look at the plane and this and that. तो कह रहे अरे बाप रे देखो जहाज सब उतर रहा है। But every 10 minutes he's saying, hey, he was saying, that became little annoying with us, you know. और हर 10 मिनट में वो कह रहे देखो जहाज उतर रही है, थोड़ा सुन के परेशानी So होने लगी। after 1 hour, I told him, एक घंटे के बाद उससे कहा हमने। I said, from nearly 10 minutes you're telling something is coming, something. He
He said, yeah, he's saying so much of noise over here, he's saying. और इन्होंने कहा कि अरे हर 10-10 मिनट में आप कह रहे कुछ तो उतर रहा है आ रहा है हाँ उन्होंने कहा हाँ बहुत आवाज हो रही We है told him, there's no noise, they're so silent. He's saying, what silent? Every now and then everything is landing, something is it's landing. Now listen, because we've stayed close to the flight path for many years, we have become totally immune. और देखिए How many क्योंकि understand देखिए, right जहाँ now? जहाँ उतरते वहीं पर हम Yeah. बगल में रहते इसी वजह से वहां की आवाज सुनने का देखिए एकदम हमारे लिए आम बात हो गई है In the same way, उसी तरह से many Christians are like that. बहुत सारे मसीह ऐसे ही हैं They've heard the gospel, that Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. And now they say, yeah, we know Jesus is coming. और उन्होंने सुसमाचार को सुना है कि यीशु आ रहे हैं यीशु आ रहे हैं यीशु आ रहे हैं तो वो कहते हैं हाँ हमें पता है यीशु आ रहे And हैं this is the danger और यही तो खतरा है that many Christians, listen carefully. सुनिए ध्यान से बहुत सारे मसीह लोग Look at your neighbor and say, be careful, sir. अपने पड़ोसी को देख कर कहें सावधान रहना Many will be left behind. और बहुत सारे पीछे छूट जाएंगे Listen सुनिए carefully. ध्यान से I don't know about the unbelievers. I'm talking about the Christians. और देखिए अविश्वासी लोगों के बारे में नहीं कह रहे मसीह लोगों के बारे में कह रहे हैं Come on, hallelujah. सुनिए कहे हालेलुया Many will be left behind. और बहुत सारे पीछे छूट जाएंगे And today I want to talk to you about that. और आज इसके बारे में बोलना चाहते हैं The Bible says और बाइबल में ऐसा कहती है nearly 50% of the church will be left behind. और तकरीबन लगभग 50% कलीसिया जो है पीछे छूट जाएगी I want you to be very careful. चाहते हैं कि ध्यान से सुने So today I bring this message of warning to you. तो आज देखिए ये चेतावनी भरे संदेश को आपके सामने पेश कर रहे हैं And I want to glean principles in God's kingdom that will help you prepare to what God is talking और to देखिए you. परमेश्वर के वचनों में जो What छिपे God हुए is सिद्धांतों saying को actually. आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को तैयार कर ले इस बात के लिए जो परमेश्वर आपसे कह रहा है Go to Matthew 25 and this maybe second part of this message. Let's see now. चलिए मत्ती का 25वां अध्याय Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा who took their lamps and went out to meet the bridegroom. जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली Second point, write it down. और दूसरा मुद्दा लिख लीजिए They were all virgins. गौर करें कि वे सभी कुंवारियां थीं 10 virgins. 10 कुंवारियां Now, the secular meaning of virgin is different. We're not going to go there now. Okay. Hello, are you listening right सुन now? रहे हैं इस वक्त? Let's not go there. चलिए वहां नहीं जाएंगे But when the Bible says virgins, लेकिन जब बाइबल कहती कुंवारियां it means set apart. इसका मतलब होता है अलग की गई Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं Virgin speaks about a Christian who's in the world but not of the world. और देखिए कुंवारियां जो है ये मसीहियों के बारे में बताता है जो कि दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं Come on, how many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस They वक्त are the blood-washed Christians. और वे यीशु के लहू में धोए गए मसीही Jesus हैं is speaking about those who know him, और यीशु उन लोगों के बारे में कह रहे थे जो उनको जानते those who know him as the bridegroom, और जो उन्हें उसे जानते दूल्हे के रूप में and that those who are waiting for him to come, his bride. और जो इंतजार में थे उसके आगमन के उसके जो धन के रूप में दूल्हे के आगमन करते Now हैं there are many Christians. और देखिए बहुत सारे मसीह हैं Hello. Just because you were born in a Christian family doesn't make you a Christian. और देखिए क्योंकि आपने मसीह परिवार में जन्म लिया इससे आप मसीह नहीं बन जाते You were born in a hospital. Does that make us doctors? आपने अस्पताल में जन्म लिया तो इससे क्या आप डॉक्टर बन गए Hello. No, I was born in the top hospital of USA. That doesn't make you a doctor, sir. और देखिए यूएसए के अगर एकदम Does सर्वश्रेष्ठ it make you a compounder? क्या इससे आप कंपाउंडर No. बनते नहीं Does it make you a nurse? इससे आप नर्स नहीं बनते। No. To become a doctor, you have to study for years. Come on, hello, are you there? डॉक्टर Right बनने now? के लिए देखिए आपको Yes. सालों तक देखिए पढ़ाई करनी पड़ती No, है just because you're born in a Christian family. और क्योंकि बस आपने एक मसीह परिवार में जन्म ले लिया So that makes you a Christian. तो इससे क्या आप मसीह बन जाते हैं No, my name is Michael, so? My name is Peter, so? Hello? सुनिए Thank God your name is not Judas. परमेश्वर का धन्यवाद कि आपका नाम जुडस नहीं Jesus. Come on, hello, are you there with me right now? चलिए क्या साथ में हैं आप No. I used to go with my mother to church. You went to with your mother to church because she dragged you. आप You had अपने no option. माँ के साथ कलीसिया में जाते थे चर्च में जाते थे क्योंकि वो आपको खींच के लेके जाते थे आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं था How many of you follow me in church? ये तो समझिए कलीसिया Yes. Please understand this. मेहरबानी करके समझिए इसे What is a Christian? एक मसीह क्या The होता word Christian, please listen to me, है? सुनिए ध्यान से means anointed one. मसीही मतलब होता है अभिषेक की जन How many of you following me right now? ये तो समझ है इस वक्त Jesus said, if you love me, you will follow my commandments. You will keep my commandments. और यीशु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन Your करोगे name must be Tino, your name must be Minu, your name must be Chino. But if you're following the commandments of Jesus, you are a Christian. और भले आपका नाम कुछ भी हो सकता टीनू या मीनू कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर Chino. आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करोगे आप Miku, मसीही you know. हैं। Come on now, hello, are you with चलिए me? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त If you are following the commandments of Jesus, then you are a Christian. Otherwise, you're just a tag.
अगर आप यीशु के देखिए आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो देखिए आप एक मसीह नहीं तो आप एक बस एक टैग जैसा होंगे। One day we were, Xavier's. I was in the Xavier's college, जी जेवियर कॉलेज में थे। And, we used to, there was always a pressure on us, to wear the latest stuff, because everyone was wearing something. So every month we had to change our clothes. Hello, और are हर you महीने listening? देखिए ऐसा दबाव होता था कि कुछ अच्छे अच्छे पहनना है, मैं तो हर महीने कपड़े Nowadays, बदलना पड़ता। don't worry. Listen, nowadays it's cool to wear the same thing every day. No man, listen. So we used to go to this thing called Fashion Street. Now I don't know if it's there also. तो फैशन स्ट्रीट नामक जगह पे It's still जाया there? Anything fashionable over there? I don't know. Okay. Okay, it's okay. Good. Yeah. So we used to go there. तो वहाँ जाया करते थे। And so we used to look at those jeans, So one day those days there was like Pepe jeans. Hello, anybody know what I'm talking about? Yeah, Pepe jeans. And so one day I and my friends, we were going, we went over there. We found something like Pepe, and it was not Pepe. It was like E was like a R, so it became Papa jeans, So we told him, hey, this is fake stuff. तो इन्होंने कहा कि अरे ये तो नकली है। Sir, क्या किसको मालूम पड़ेगा? Pepe, Papa jeans होता है ना ऐसे. The point I'm trying to make is this. देखिए मामला ये है, Please listen, sir. सुनिए यहाँ से। Just because you carry a name doesn't make you Christian. और बस क्योंकि आपने नाम लेके रखा है इसका मतलब आप मसीह नहीं बन जाते। How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं। So today, listen to me carefully. ध्यान से सुनिए। Check your life. The first thing, check your life. Are you in the Lord? Somebody say in the Lord. अपनी जिंदगी को जांच लीजिए कि क्या आप प्रभु में हैं। Just because you got a membership to a church doesn't make you a Christian. और देखिए किसी कलीसिया की सदस्यता आपको मिल गई इससे आप मसीह नहीं बन जाते। You paid the gym fees for the whole year. Does it mean you have muscles? और देखिए पूरे साल भर के लिए आपने जिम की फीस अदा कर दी तो इससे क्या आपकी मांसपेशियां अच्छी बन जाती हैं? Public जब 31st आता है ना तो जाके जिम ज्वाइन करता है. पूरा साल का पैसा, और जिम वाले लोग भी जानते हैं, इसलिए ऑफर रखते हैं. बोले 8 महीने का भरो, 12 महीने आओ. उनको पता है 1 महीना भी नहीं आएगा. अगर चाहता तो हाथ उठा सकता था, जाने दो. लेकिन I'm telling you, there are people like anybody like that over here. God bless you. Oh Jesus. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे this is how it is. ऐसे ही होता ही है। And this is the same thing with Christians. और ऐसा ही मसीह लोगों के साथ Today, है। check your life. Are you in the Lord? आज अपनी जिंदगी को जांचें, क्या आप प्रभु में हैं? Come on, somebody, praise the Lord. चलिए कोई तो कहे प्रभु की स्तुति। Third thing, rather, they had the same purpose to meet the bridegroom. और देखिए उनके पास एक ही उद्देश्य था अपने दुल्हे से मिलना। Come on, everybody, write it down. चलिए सभी लोग कहें। Look what it says. Go verse 2 says, दूसरा वचन देखिए क्या कहता है। who took their lamps and went to meet the bridegroom. अपनी मशालें वो लेकर दूल्हे से भेंट करने को गई। Everyone say they took their lamps सभी लोग कहे अपने दीप यानी to मशालें meet the bridegroom. दूल्हे से मिलने के लिए। Now, when you hear the word lamp, it speaks about the word of God. और देखिए जब यहाँ शब्द आया मशाल यानी दीप शब्द जब सुनते हैं तो देखिए ये परमेश्वर के वचन को This is बताता है। so important. Everyone say they took their lamp to meet the bridegroom. अपने दीपक को लेकर वो गए दुल्हे से मिलने के लिए। We know who the bridegroom is. The bridegroom is Jesus. In other words, if you have to meet the bridegroom Jesus, you need to have an understanding of the word of God. और दूसरे देखिए वे गए यीशु से मिलने के लिए। देखिए अगर आप यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त। Come on, praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। One day, एक दिन there was a great meeting in South India. और दक्षिण भारत में एक बड़ी सभा रखी गई थी। Lakhs of people would come to this servant of God. लाखों की तादाद में परमेश्वर के जन के पास आने And this man, he said, और ये व्यक्ति ने कहा I want to meet that man on the stage. और उस एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उस मंच पर जो व्यक्ति उनसे मिलना चाहता I हूँ want to meet that fellow. उस व्यक्ति से मैं मिलना चाहूंगा। And after the meeting, he ran towards the stage. और सभा के बाद में मंच की ओर वो दौड़ के गया But because of the crowd, लेकिन भीड़ की वजह से he could not reach. The preacher got down, went away. प्रचारक वहां से मंच से उतरे और गाड़ी में सवार होकर चले गए। He was very upset. तब उन्हें बहुत निराशा हो For गई। 3 days, he tried to meet the preacher. 3 दिन तक उन्होंने कोशिश किया प्रचारक से मिलने की He could not meet. लेकिन नहीं मिल सकी। Last day, 3rd day, आखिरी दिन तीसरे he sat in front, वो जाके सीधा आगे but बैठे the security stopped him. लेकिन सिक्योरिटी ने उनको रोका। Hello? Very hurt, बहुत ठेस लग गई, very offended. बहुत ही ठोकर खाई ठेस That लगी। night, और उस रात he said, I want to meet this person who's saying Jesus is standing next to him. I'll go and see where this Jesus is standing. और ये व्यक्ति जिसके बारे में वो कह रहे थे कि यीशु बस तुम्हारे बगल में खड़ा है, मैं मिलना चाहता हूँ कि कहाँ पर ये व्यक्ति यीशु That खड़ा है। man of God was Uncle DJ's Dinakaran. और Hello. परमेश्वर के वचन अंकल डीजे से अंकल Listen. सुनिए He said, Jesus is here, standing next to me. He says, I want to go and see where this Jesus is standing. तब उन्होंने कहा कि यीशु आपके बगल में बस खड़े। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जाकर देखना चाहता हूँ कहाँ यीशु खड़ा है। That night, उस रात he slept, वो सोए very hurt. बहुत ही ठेस खाए हुए। In the dream, स्वप्न में Jesus comes to him. यीशु उसके पास आते हैं। I'm telling you, listen to me. He comes and stands before him वो आकर उसके सामने खड़े होते हैं and said, you wanted to meet me, na और son? कहते हैं तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना। He said, who are you?
तब उस आदमी ने पूछा He आप said, कौन I'm हैं? the same Jesus whom you wanted 3 days. You ran in front of the stage to meet me, to see me. I have come to meet you. यीशु ने कहा कि वही यीशु जिससे तुम 3 दिन तक मंच की तरफ दौड़ के मुझे मिलना चाहते थे, कोशिश कर रहे थे, मैं वही He यीशु। was trembling. तब वो कांपने लग He गया। said, I know all about you. तब उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ You are जानता हूं। praying for your daughter's marriage. तुम अपनी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे You हो, have no money. तुम्हारे पास पैसे नहीं है। Tomorrow, somebody relative is coming and the money is coming to you. कल तुम्हारे पास एक रिश्तेदार आने वाला है और पैसे तुम्हारे पास आ रहे He हैं। started crying. वो रोने लग गया। Everything about his life, he said. उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ प्रभु ने He बताया। got up in the morning, वो सुबह उठा, went on his knees. अपने घुटने पर आया। But as Jesus was leaving, here's what he said. और सुनिए जब यीशु गुजर जा रहे थे तब He said, why did you come to meet a poor man like me? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझ जैसे गरीब व्यक्ति से मिलने के लिए आप क्यों आए? He said, I'm not worthy. उस व्यक्ति ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं। He said, 3 days तब यीशु ने कहा 3 दिन, you were listening to my word. 3 दिन से तुम मेरे वचन सुन रहे थे। Now I will come and listen to your word. अब मैं आ गया हूं तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. You know, when I was preparing this जब message, इस संदेश को तैयार what करा a beautiful word. कितना खूबसूरत। Look what it says. I want you to understand this. और चाहते कि आप समझें, This is the truth. ये एक सच्चाई है। Look at what it says. Write it down, everybody. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। He says they took their lamps and went out to meet Jesus. और देखिए वे अपने मशाल यानी दीप को लेकर गए यीशु से मिलने। In other words, दूसरे शब्दों में, the word reveals Jesus. वचन जो है यीशु को प्रकट करता है। Look at the 5 loaves and the 2 fish. और गौर करें कि 5 रोटी 2 मछली For 3 days. 3 दिन। Come on now. They were listening to the word. देखिए 3 दिन तक वो वचन को सुन They रहे were थे। listening to the word. वे वचन को सुन रहे थे। Come on, hello, yes or no? So much so that all the thought about food left them. इतना ज्यादा कि खाने पीने की चीजों के देखिए विचार उनमें से निकल गया। But on the 3rd day, लेकिन तीसरे दिन Jesus said, यीशु ने कहा they have to see something now. उन्हें कुछ तो देखने की जरूरत है। The word prepares you to see the manifestation of Jesus. वचन आपको तैयार करता है यीशु का प्रगटीकरण देखने के लिए। So if you are a true virgin, तो अगर आप सच्चे कुंवारियां if हैं, you are a true Christian, अगर आप सच्चे when मसीही you हैं, come to church, तो जब आप कलीसिया when you आते हैं, come for a service like जब इस this, तरह की सभा में आप आते you हैं, will have the word in your hands. आपके हाथों में वचन होगा। Come on, open your Bible now. Open your Bible, चलिए, अभी आप everybody. सभी लोग बाइबल Never खोलेंगे, बाइबल come to खोलो। a service without the word of God. कभी भी सभा में परमेश्वर के वचन के बिना नहीं आना। Never sit. You may be Apostle Paul's lost cousin. प्रेरित पौलुस के बिछड़े हुए आप रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कभी भी वचन लेके बैठो। कितने भी बड़े आदमी हो आप, कितने भी बड़े होशियार, नाम चिन्ह, वचन का मान सम्मान करो. You will meet Jesus. आप यीशु से मुलाकात करेंगे। Can I have a good amen, एक somebody? अच्छा आमीन सुन सकते हैं यहाँ। I'm telling you, church. कहने के लिए This is so important. ये बहुत ही ज्यादा I'm महत्वपूर्ण talking है। to the Christians. I'm not मसीह talking लोगों to से anybody else. If you are come here just for Hava Pani Laddu, all that stuff, please, I'll pray for you and you can go home. I want to talk to somebody who's really hungry for Jesus. कोई तो जो यीशु के लिए सच में भूखे हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं। Go to Psalm 119, verse 105. और देखिए भजन संहिता का अध्याय 119 उसका 105 निकालें। Psalm 119, verse 105 says, your word is a lamp to my feet भजन संहिता अध्याय 119 उसका वचन 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है and a light to my path. और मेरे मार्ग में उजियाला है। Come on, hello, are you with me right now? क्या साथ में हैं? Lamp to my feet and light to my path. Listen to me. ध्यान से सुनिए। मुझे पता नहीं कि आप लोग कभी टॉर्च है ना, बहुत दूर जग जाता है टॉर्च, कितने लोग जानते हैं? बट वो दिया होता है ना, उतना ही दायरे में रोशनी देता है. कितने लोग गए? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप नहीं गए, आप परेशान हो जाएंगे. जब गांव में जाते हैं ना, हेलो कितने लोग सुन रहे हैं? गांव में जाता है ना, तो ऐसा ऐसा झाड़ से आवाज आता है ना, आपको पता नहीं है. माँ बाप पूरा खानदान याद आएगा आपको. मेरे ग्रैंडफादर थे, वो बोलते थे कभी भी ऐसा पैर नीचे मारो. बोले पापा जी क्यों ऐसा मारने का? बोलते कुछ सांप वाप रहेगा ना, भाग जाएगा. जो गांव के लोग रहते थे ना, उनको मालूम है कैसा करने का. हम लोग शहरी बाबू, हम लोग कुछ नहीं मालूम, शानपति ज्यादा है. इतना सा जानते इतना बात करेंगे. कितने लोग सुन रहे हैं? हेलो, आर यू लिसनिंग राइट क्या नाउ? सुन रहे हैं? सो वी यूज्ड टू गो विद अ लैम्प. तो हम दिया लेके जाते थे. We used to put it lamp like that, and after the bath, we used to go near the well. So after coming from the well, the thing was very dark. तो एकदम अंधेरा वहां छाया होता था. तभी हम लोग का प्रार्थना जीवन बहुत बढ़ जाता था. I'm telling you. Really, I'm telling you. He used to tell us to wear that cap. It's a hard shell cap on the head. So one day I asked my grandfather, तो एक दिन दादाजी से पूछे, why do you want us to wear the head cap? He सिर्फ says इतनी there are मोटी सी- snakes on the trees that can hit you on your head. वो बताते थे कि इस पेड़ पे से
सांप होते हैं जो तुम्हारे सिर पे से डर सकते हैं। So you have to wear that hard cap on your head. तो एकदम सख्त कठोर वो टोपी पहनना होता था सिर में। कितने लोग सुन रहे हैं? बाकी के लोग सुना भी नहीं रहे। Ah, snake on the tree. I'm telling you. कह रहे हैं आप। So that lamp, तो दिया, as you take that step, जैसे आप कदम उठाते हैं, the light will go further. देखिए वो उजाला और आगे You take जाएगा। that step, the light will go उसके बाद further. आप कदम उठाएंगे, उजाला और आगे That जाएगा। means इसका मतलब revelation. Come on, everyone say revelation. सब लोग कहते हैं प्रकाशन। Many people are saying, God, I don't have direction in my life. और बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में कोई मार्गदर्शन मुझे नहीं मिला। Take the word वचन को लो and walk with it. और उसके साथ चलिए। You will have revelation. आपके पास प्रकाशन You will होगा। have understanding. आपके पास समझदारी Many होगी। people take the word देखिए बहुत सारे वचन and लेते you sit with it. हैं और बैठे रहते हैं। No, sir. नहीं चला। When you get the word, जब आप वचन लेते हैं, take action on the word. उसे कार्य करें। More light. और ज़रा उजाला। More further. और आगे। Somebody say hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया। बोले प्रभु तू मेरे जीवन में क्या करना चाहता है? नहीं बोला सर मैंने वचन पढ़ा, आपने बोला ना 2 अध्याय पढ़ो, मैं पढ़ लिया। अरे पढ़ के क्या होने वाला है? जो वचन बोला है वो कर। दिया लेके तू एक जगह पे खड़ा रहेगा तो खुद किधर पहुंचेगा क्या तू? नहीं, तो दिया ले, लालटेन ले, ऐसा पकड़ और एक कदम आगे बढ़ा, रोशनी आगे जाएगी। कम ऑन नाउ। दूसरा कदम बढ़ा, रोशनी आगे जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति हो। आई सेड प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन कहता है, if God's word says forgive, अगर परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा करो, forgive, तो क्षमा करो। नहीं लेकिन ऐसा कैसा तो उधर ही बैठ फिर तू। If God's word says fast, अगर परमेश्वर का वचन कहता है उपवास करो, then fast. तो उपवास करो। नहीं but बोला तो गया तू। कितने लोग सुन रहे हैं? If God's word says pray, अगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करो, then you pray. तो आप प्रार्थना करें। And as you take these small और steps, जैसे आप इन छोटे कदमों को उठाते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? नहीं जा, प्रभु कहता है तेरे साथ है। साथ है क्या? बाहर निकल, दरवाजे के बाहर निकल, जा काम पे, जा स्कूल में जा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The word of God is a lamp to your feet. Light will become further and further and further and further. परमेश्वर का वचन आपके पैरों के दीपक है। देखिए जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो जाला जो है आगे आगे बढ़ता जाएगा। So first 2 things over here. तो पहली दो If चीज, you want to see Jesus, अगर आप यीशु को ग्रहण करना you चाहते must get into the word of God. हैं, तो जरूरी क्या परमेश्वर के वचन में जाएं। No sir, please, there are many people, you get your theology from movies. और देखिए बहुतों को उनका तत्व ज्ञान जो है फिल्मों से मिलता है। They see movie Samson with the big muscles. It's और वो not देखिए, true. ये सच नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? कि जो समझ रहे हैं, सैमसन के पास मसल थे ही नहीं। All crap. वो सब बेतुका चीज है। ओ एडम एंड ईव नंगे थे ही नहीं। नहीं एडम एंड ईव नंगे नहीं थे। प्रभु अपने बच्चे को नंगा नहीं रखता। You don't know the word of God. आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते। ये सब फालतू चीजें मूवी में दिखाते हैं। नोआ का मूवी अभी आया था, बकवास। This is the truth. सच्चाई है। So when you go into the word, तो जब आप वचन में जाते हैं, do you know, please listen, I had gone somewhere. Many of you, आप इस बहुत when you pray, you don't know what you are praying. जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको पता ही नहीं चलता आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। बाजी वाले को बोल रट्टा मारता है प्रेयर। अपने पड़ोसी को रट्टा मारते हो। मेरा माँ बोलता था इतना फास्ट मत बोल, यीशु को भी समझ में नहीं आएगा। कितने लोगों ने ऐसे प्रार्थना की है? शाम को रोज करते थे हम लोग। We don't, no, listen. We सुनिएगा। don't know what we are speaking. Some of the words. Just because many are saying it, we are also saying it. Don't get angry on me. गुस्सा मत I am होइएगा। telling you the truth. सच्चाई Come on, hallelujah. हालेलुया। If you really think what you are singing and what you are speaking, you will not sing those songs. अगर आपको सचमुच आप सोचेंगे कि जो आप गाते हैं और जो आप देके बोलते हैं तो आप उन गानों को नहीं गाएंगे। I'm telling you, church, please learn to speak the right word. And only when you know the word of God, everyone say word of God, सब लोग कहें परमेश्वर का वचन, you will speak the right things. जब आपको पता होगा तभी आप सही चीजें बोलेंगे। कोई लोग बहुत ब्लेसेड लोग हैं क्योंकि आपको ये सब चीजों से गुजरना नहीं पड़ा है। आपको जो सीख रहे हो, आप लोग नया सीख रहे, सही सीख रहे। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लोग हम लोग जैसे को लोगों को जो पहले सीखे थे वो गलत था, अभी वापस हम लोग को नया सीखने पड़ रहा है। How many understanding, church? कि तो समझे कल। Verse 2, my 4th point. Now 5 of them were wise and 5 of them were foolish. और देखिए उनमें से 5 जो थी वो बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। Verse 3, those who were foolish took their lamps but took no oil with them. और देखिए जो मूर्ख थी उन्होंने अपने साथ दिया तो लिया लेकिन तेल नहीं लिया। But the wise took oil in their vessels along with their lamps. लेकिन समझदारों ने अपने अपने दिए के साथ साथ उन्होंने अपने पात्र में तेल भी भर लिया। Write it down, the 5th point. लिख लीजिए 5वां मुद्दा। Write it down. The difference between foolishness and wisdom was only one thing. Write it down, the oil. देखिए मूर्खता और बुद्धिमानी के बीच का सिर्फ एक ही अंतर था, वो Write था it down, तेल। write it down, write it down. लिख लीजिए। The foolish had oil in their lamps, but
the wise had extra oil in their lamps. और देखिए जो मूर्ख थे उनके पास उनके दिए में तेल था, लेकिन बुद्धिमान जो थी उनके पास तेल ज्यादा मात्रा में In था। other words, a wise person will always be continually filled with the Holy Spirit. दूसरे शब्दों में बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है लगातार निरंतर पवित्र आत्मा से भरता रहता How है। many of you following me right now? ये तो समझ The रहे हैं। second thing, दूसरी चीज। it's not enough to just have the word of God. देखिए परमेश्वर का वचन होना ही काफी नहीं है, You must also have fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ भी आपकी संगति होनी चाहिए। How many of you following me right now? The Holy Spirit, please understand this. और मेरे बारे में समझिए, Many people, देखिए बहुत they सारे लोग, only say word, 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 but they don't have the Spirit. वे सिर्फ कहते थे वचन 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 वचन, लेकिन आत्मा उनके पास नहीं होता, That's why they become dry. इसलिए वो सूखे हो जाते हैं। Some of them, कुछ लोग they only say Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. वे सिर्फ कहते थे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, They become fluffy. और देखिए एकदम ऐसे रह जाते हैं। उड़ने वाले बनते हैं. Tell your neighbor, you need both of them. अपने पड़ोसी को बोलिए आपको दोनों की जरूरत है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? The word, everyone say the word सभी लोग कहे वचन and the Spirit. और आत्मा, Look at somebody, say the word and the Spirit. किसी को देखकर कहे वचन और आत्मा। You know, some people will tell you, अरे gifts विफ्ट्स कुछ नहीं, खाली word पे ध्यान दे. और कुछ लोग ऐसा कहेंगे ये वरदान वरदान कुछ नहीं होता, सिर्फ वचन पर ध्यान How दो। many of you heard me right? किसी सुने? Heard this. People, they go on Facebook and all, they criticize about the tongues, gift of tongues. और देखिए ऐसे लोग जो है फेसबुक पर आते हैं और अन्य भाषा बोलने वाले के वरदान जो उसकी निंदा करते रहते हैं। In the church. I'm not talking about outside. Church people, they speak against tongues. कलीसिया के लोग अन्य भाषा के खिलाफ में बोलते हैं, These are people. ये वो लोग हैं। I'm telling you. They have the word, but they don't understand the Spirit. देखिए उनके पास वचन तो होता है लेकिन आत्मा को नहीं समझते। How many are understanding right now? So it is so important that you must have the Spirit and the word and the Spirit. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके पास आत्मा हो और वचन हो, That's वचन हो और called आत्मा true हो। wisdom. Everyone say true wisdom. सब लोग का सच्चा बुद्धि। Otherwise, please listen. If you have the word and if you don't have the Spirit, देखिए अगर आपके पास वचन तो होता है लेकिन आत्मा नहीं होता, you will hear the word, तो आप वचन सुनेंगे but it will not be effective in your life. लेकिन ये आपके जीवन में जो है प्रभावशाली नहीं होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर तुम्हारे पास वो स्पिरिट होता ना, तो उस वचन में जान आती थी. ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग वचन सुनते हैं लेकिन वो वचन में जान नहीं आती. बोले सुना तो है लेकिन वो फिर भी मैं हर्ट में जी रहा हूं, फिर भी मैं जेलेसी में जी रहा हूं, फिर भी मैं मैनिपुलेशन में जी रहा हूं. क्योंकि अगर वो वचन में जान आती थी ना, मेरा जीवन बदल जाता था. How many understand right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। You heard that word that don't stay in hurt. You are still hurt. और देखिए वचन आपने सुना है कि आपको ठेस में नहीं जीना है, लेकिन फिर भी आप ठेस में जी Why रहे are you हैं। still hurt? फिर भी आप You heard the word that you should not be jealous of somebody. Oh, this guy, he's got a new job. He's got a new house. Earlier I used to speak. Now I'm not speaking. Why? If the word and the spirit was there, then I would be happy that my brother is going up. और देखिए अगर वचन और आत्मा दोनों हो मुझ में होता तो देखिए मैं खुश होता कि मेरा भाई जो है ऊंचा उठ रहा है जिंदगी में। Come on, मैंने hallelujah. कहा हालेलुया। I said hallelujah. Hallelujah. We know ये सही नहीं है. हमें पता है कि ये सही नहीं है। If you had the word and the spirit, अगर आपके पास वचन और आत्मा होता है, you know that gossiping is wrong. You know the word. But now the word becomes so alive to you. You said, no, let me shut my mouth. और How many of you listening right आप तो now? सुन रहे हैं इस समय, You have the word, but you don't have the spirit. There is no life in that word. और देखिए आपके पास वचन है लेकिन आत्मा नहीं, इसी वजह से उस वचन में कोई जीवन नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। कोई कोई इसलिए बासी खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना है वो, लेकिन बासी खाना है. कितने लोग बासी खाना खाते हैं? कोई नहीं खाता है. बासी खाना किधर डालते हैं मालूम है? 2 दिन 4 दिन का बेचारे वो जो रास्ते पे बेचारे होते हैं ना जानवर, वो लोग खाते हैं. I love animals. This is the fact what I'm telling you. ये वो सच्चाई Say it आपको after बता me, the word and the spirit. सभी लोग कहें वचन और आत्मा। The spirit will give life to the word. और देखिए आत्मा जो है वचन पर जीव देगा, उजाला डालेगा। For many years, कई साल से I would hear the word. वचन तो सुनते रहे। In every service, हर एक I समय। grew up in a Christian family. एक मसीह परिवार में ही Many बने years हुए। I heard the word. कई साल तक वचन को सुनते रहे, But one day, लेकिन एक दिन the Holy Spirit came upon me. पवित्र आत्मा इन पर आया And I sat in that same service. और उसी सभा में बैठे And I said, my God, और इन्हें कहा, अरे बाप what is this? ये क्या है? Because the same, अरे बाइबल बदली नहीं हुआ है. क्या बदल गया फिर? आदमी बदला. How many understanding this कितने right समझ रहे हैं इस now? बात को? That's why the Bible says foolish and wise. और इसी वजह से बाइबल कहती है देखिए मूर्ख और बुद्धिमान। Lady, why you are? Because your father must be Peter, your uncle must be who? Andrew. और शायद आपके पिताजी का नाम पीटर रहा होगा, आपके अंकल का नाम एंड्रू रहा होगा, Your mother's name is Mary. और आपकी माँ का नाम मेरी रहा होगा, Auntie's name is Martha. और किसी और मार्था।
but nothing is happening लेकिन कुछ हो नहीं in रहा your life. आपकी जिंदगी When people look at in your life, they look at a Judas or Judasni. और लोग आपकी जिंदगी में देखते हैं तो पाते हैं कि आप जुड़स हैं या जुड़ीसी नहीं है मुंह पे हंसी नहीं है, मुंह पे ऐसा ऐसा. You know why? आप जानते क्यों Because आप वचन जानते हैं, लेकिन उस वचन में जान नहीं है. अगर वचन में जान आएगी ना सर, आपके अंदर लोग बोलेंगे एक वर्ड काफी है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या ये तो कह सुन रहा रहे हैं हूं? इस वक्त Look at somebody and say, the किसी को लेकर difference between wisdom and foolishness is the anointing of the Holy Spirit. मूर्खता और बुद्धिमानी के बीच में फर्क है वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग सुन रहे हैं? Don't just marry a person. I want to tell the young girls and the young boys, नौजवान don't लड़के marry लड़कियों a से कहना। person just because he comes to church. Marry a person who fears the Lord. सिर्फ एक व्यक्ति से इससे शादी मत करो क्योंकि वो कलीसिया में आते हैं नहीं नहीं उस व्यक्ति से शादी करो क्योंकि प्रभु का अभिमान One family came to me and said, sir वो आपके चर्च में आता है ना? मैं बोला मेरे चर्च में बहुत लोग आते हैं. मेरे चर्च में आने से आप अपनी बेटी को शादी का रिश्ता मत करो. नहीं पास्टर जी आपके चर्च में आते हैं ना तो अच्छे ही होगा. मैं बोला मैं शैतान भी निकालता हूँ हर संडे को. बहुत सारे शैतान लोग आते हैं लेके. नहीं ऐसा मत बोलो, अच्छा लड़का है वो. मैं बोला आपने कहा अच्छा, मैंने नहीं कहा अच्छा. आगे आप देख लो. अच्छा हुआ तो प्रभु का, नहीं अच्छा हुआ तो पास्टर को दोष देते हैं. जब तुम घूमते हो तब पास्टर को बोल के घूमते हो क्या? कितने लोग सुन रहे हैं? So don't, if you should have the word and the spirit. Look at somebody and say शानाबन. आपके पास Word वचन and होना the चाहिए spirit. और आत्मा दोनों होनी चाहिए Word and the spirit. नहीं तो बहक जाओगे, नहीं तो बहक जाओगे. इसीलिए बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं लेकिन कुछ करते नहीं क्योंकि स्पिरिट नहीं है. That's why the virgins were called foolish. And there are some who were called wise. Can you understand this right now? कुछ को मूर्ख कहा गया और कुछ को बुद्धिमान कहा गया This is beyond your thing right now. Come on, somebody, praise the Lord. Hallelujah. Every day हर दिन you must say, Holy Spirit, आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा fill me today. मुझे भर दे आज Say it again, Holy Spirit, fill me today. और कहे पवित्र आत्मा मुझे भर दे You आज। may not feel anything, देखिए आपको कुछ ऐसा महसूस but नहीं as होगा। you do this for a week, लेकिन जैसे आप हफ्ते भर में करते हैं I'm telling you, कह रहे हैं आपसे things will begin to change in your life. चीजें आपकी जिंदगी में बदलने लग Things will begin to change in your life. चीजें आपकी जिंदगी में बदलने लगी Hallelujah. Hallelujah. I said, praise the Lord. कहा प्रभु की स्तुति हो I said, praise the Lord. हाँ प्रभु की स्तुति हो Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं Listen to me. सुनिए One day, एक दिन listen to me. अब सोचेंगे. One day, I told the Lord, एक दिन इन्होंने प्रभु से कहा प्रभु I'm just going to ask you, Lord, to just fill me. So I said, okay. So, many years back, कई साल पहले की I'll बात tell you, I kept a timer for 1 hour, I remember. और 1 घंटे का इन्होंने टाइमर लगाया था I had this old Samsung mobile phone, वैसा flip cover वाला था. ऐसा ऊपर एक एरियल भी था उसमें, छोटा सा एरियल. बहुत अच्छा लगता था, blue में, So I kept a timer on that तो इन्होंने टाइमर लगाया for 1 hour. 1 घंटे का And for 1 hour, 1 घंटे तक I sang, Holy Spirit, I love you, Spirit. I was just singing, worshiping with my guitar. अपना गिटार लेकर प्रभु की आराधना कर रहे थे गा रहे थे Now listen to this. सुनिए। And if we were having a small service in, somewhere close by, I would like to say. और कुछ एक छोटी सी सभा कहीं हुआ करती थी बताएंगे नहीं And I went over there और वहां गए and I stood. खड़े हुए And I said, now the Holy Spirit said, now say, come out in Jesus' name. और फिर पवित्र आत्मा ने कहा अब बोलना कि बाहर आओ यीशु के नाम में So I said, 1 घंटा गा के I become Holy Spirit. देखते क्या होता है अभी. I said, you devils, come out in Jesus' name. इन्होंने कहा तू दुष्ट आत्मा बाहर आओ यीशु के नाम में 3 औरत लोग जो just अंदर आए थे ना, उनके मुंह से पैसा व्हाइट निकल गिर गए वो लोग. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो होली स्पिरिट ने कहा, अगर तू आत्मा से भर जाएगा ना, तो दुष्ट आत्मा तेरे सामने खड़े नहीं रहेगी. तो हमेशा दुष्ट आत्मा कहता है ना. आत्मा से, सच्ची आत्मा से भर जा. जो रोशनी है, जो शांति है, सारी दुष्ट आत्मा भाग जाएंगी यीशु के नाम से. लिफ्ट योर हैंड एंड से, लॉर्ड फिल मी नाउ. अपने हाथ में कहा प्रभु मुझे भर दे अभी In the name of Jesus. यीशु के नाम में In the name of Jesus. यीशु के नाम वो गंदी लत जो तेरे अंदर है, वो गंदी जो लत तेरे अंदर है, वो लत निकल जाएगी. बोले दारू चाहिए, प्रार्थना कर. जब आत्मा अंदर आएगी ना, दारू की लत निकल जाएगी. कितने लोग सुन रहे हैं? दारू पी के किसी का घर नहीं टिका. दारू पी के कोई भी एयरप्लेन नहीं चलाता है क्या? कितने लोग जो बेवड़ा पी के उस दिन कोई बस ड्राइवर ठोक दिया. कितने लोग जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? बेचारी औरत शादी करने वाली थी, गई बेचारी.
और वही दारू आप पीना चाहते हो. Begin to cry to the Lord and say, Lord, fill me with your spirit. कहे प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर. The first thing I spoke about was the days of Noah. और पहले बताए, देखिए सबसे पहली चीज नूह के दिन के बारे में. Second thing I told you was about the 10 virgins. और दूसरी बात आपको बताया 10 कुमारियों के बारे How में. Christians are called virgins. और कैसे मसीहियों को जो कुमारियां कहा गया है, They had the same purpose to meet the bridegroom. उनके पास एक ही उद्देश्य था दूल्हे से मिलने का. Then I told you how to meet Jesus फिर आपको ये भी बताया कैसे यीशु से मिलते हैं. is through the word. वो है वचन के जरिए. How many of you say amen to that? कितने कहते हैं आमीन इसके लिए. How the word prepares you to see और Jesus. कैसे वचन आपको तैयार करता है यीशु को देखने के लिए. And the last thing I told और you, आखिरी बात आपको बताएं. what's the difference between foolishness और देखिए मूर्खता और बुद्धिमानी के बीच में फर्क is the oil. वो है तेल. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? So today, तो आज as we cry out to Jesus, जैसे हम यीशु को पुकारते हैं, just say, Lord, I want to know you. बस कहे प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ. I want to ask you to fill me with your spirit. मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे. In the name of यीशु Jesus. के नाम. In the name of Jesus. यीशु के नाम. Revelation 3:16. If the Spirit of God comes upon you this evening, अगर आज की शाम परमेश्वर का आत्मा आप पर उतर आए, then blessed are you. तो आप आशीषित हैं. Then blessed are you. तो आप आशीषित हैं. I want to say this. कहना चाहते हैं. 2 days back, I was deep in prayer. 2 दिन पहले पास मुझे प्रार्थना में. And the Lord gave me, and we are going to have this message on the prophetic school. I'm going to put it very soon. I think another 3 days it will be on. But the Holy Spirit told me, many of you have received prophetic words. लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि आप ऐसे बहुतों ने भविष्यवक्ताई वचन को पाए हैं. But still those things are not come to pass. फिर भी वो चीजें आपके जीवन में पूरी नहीं हुई. There's a reason for that. इसके पीछे कारण है. Look at somebody and say, because you are lukewarm, क्योंकि तुम गुनगुने हो, you are neither cold nor hot, ना तुम ठंडे हो और ना गर्म, I will vomit you out of my mouth. मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा. Look at somebody and say, lukewarm. That's how many Christians are. ऐसे ही बहुत सारे मसीह हैं गुनगुने. ऐसा मत रहो. खुदा कहता है कि तुम बहुत ठंडे ना ठंडे हो ना गर्म हो. फेंक दूंगा मैं ऐसा. बहुत गंदा है. लेकिन ये one scripture says, one translation says, I'll spit you out of my mouth. दूसरा एक अनुवाद ऐसा कहता है कि मैं अपने मुंह से तुम्हें थूक दूंगा. Are you listening, church? When I read this verse for the first time in my life, पहली बार अपने जीवन में इस वचन को पढ़े थे, I found it very scary. तो बहुत ही डरावना इनको लगा. My pastor was सीधा काट देता था मेरा pastor. He says, Michael, प्रभु के लिए गरम रहना. That is why इसलिए God says, I don't want you. परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ. Either you're hot, या तो तुम गर्म रहो, either you're cold. या तो तुम ठंडे रहो. You know who are the lukewarm? आप जानते हैं ये गुनगुने कौन? These are the Christians. ये मसीह लोग हैं. ठंडे तो अविश्वासी हैं. कितने लोग जान रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? This is the scripture for the Christians. और ये वचन मसीह लोगों के लिए है. We have to be very careful. हमें बहुत सावधान रहने की That's जरूरत है. why many will be left behind. और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है पीछे ही छूट You have a जाएंगे. name. आपके पास नाम है, You have a membership. आपके पास सदस्यता है, You sing some songs. आप कुछ गाने भी गा लेते हैं. Today I want to warn you as the Holy Spirit has told me. और जैसे पवित्र आत्मा ने इनसे कहा, आप सभी को चेतावनी देते हैं. The coming of the Lord is very near. प्रभु का आगमन बहुत ही करीब है. What is happening in Israel इज़राइल में जो हो रहा है is a picture what is going to happen very soon. Not now. I don't want to be a false prophet. वो इस बात का चित्र है कि जो बहुत जल्द होने जा रहा है. अभी नहीं, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Be very careful. बहुत सावधान रहना. Already we have seen the trailer. How many say? Everybody say trailer. पहले हमने ट्रेलर हाँ, देखी. पिक्चर रिलीज होने से पहले प्रभु ट्रेलर बताता है. कितने लोग सुन रहे हैं? There are nations that will come. अभी तो खाली बात हो रही है. ये कुछ नहीं, वॉर नहीं होने वाला है. 1-2 मिसाइल चलेंगे, बंद हो जाएगा. I'm telling you. But this is what is going to happen. लेकिन यही तो होने जा रहा है. One more thing I want to tell you. और एक चीज कहना चाहते हैं. Can I share this with you? आपसे बांट सकते हैं. This now you are interested. Now I can sense it. I can sense it, the anointing. Hello. You know, many people say, you heard messages on YouTube now. देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं आपने YouTube पे संदेश को सुना है. Something bad is coming. कुछ तो पूरा होने वाला है. And Christians are forwarding it. Hey, let two part. If one person says something like that, now अगर एक व्यक्ति कुछ ऐसा कह देना, everybody says like that. तो हर कोई वैसे कहेंगे. How many of you heard such messages? कितनों ने सुना है ऐसे? And they get millions of views. और उन्हें लाखों की तादाद में व्यूज आते हैं. Listen, सुने. never preach for views. Preach what God is saying.
कभी भी व्यूज के लिए आपको प्रचार नहीं करना है, वही प्रचार करें जो परमेश्वर कह रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? If you want views, if I want views, I'll preach on aliens. Lot of views will come. Now listen to this. सुनिए, Here's the thing. Can I show it to you? Go to. Now that you're interested, I'll show you. Let's go to the word now. चलो वचन में जाएंगे। Look what it says. Let's go. Now I want to tell you something. आपसे कुछ कहना चाहते हैं? Yes, जी हाँ, there is a financial crisis coming. जी हाँ, पैसों की ऐसी बहुत बड़ी त्रासदी आ रही है। Earlier, it was a crisis of sickness. पहले बीमारियों की त्रासदी थी। Come on. So 2 years back, we saw a plague of sickness. और 2 साल पहले देखिए बीमारियों की महामारी को हमने देखा। Come on, yes or no? There's a plague of finance coming. और देखिए पैसों का ऐसा एक महामारी आ रहा है। Plague of finances. Top currencies will lose. ऊंची मुद्राएं जो अपनी स्थिति गंवाएंगी। Not because they made a mistake. It's supposed to happen. ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलती की, लेकिन ऐसा होना ही है। There will be a shift in currency. और देखिए करेंसी यानी मुद्राएं जो होती उसमें बदलाव आएगा। How many are listening right now? People will lose their jobs. लोग अपनी नौकरियां गंवाएंगे। Don't worry. Those one under the blood, you will receive great jobs. No, really, in Jesus' name, receive what I'm saying. सुनिए, ग्रहण करें, Receive what I'm saying. ग्रहण कर जो कह रहे हैं। Hello. सुनिए। I'm telling you. God will show you everything. परमेश्वर दिखाएगा सब कुछ। There much. When there was a famine, Elijah was still feeding from the king's table. और जब अकाल पड़ा हुआ था Yes, तब don't worry. एलिय्याह को जो है राजा की मेज पर से अच्छा खाना मिल रहा था। God's children will not go hungry. परमेश्वर के बच्चे लोग भूखे नहीं रहेंगे। Now listen. सुनिए। So many people are saying, now the coming of the Lord is now. तो बहुत सारे लोग कहते हैं अब प्रभु का आगमन। No, this is just a trailer. ये तो बस एक, Because when a person is hungry, जब व्यक्ति भूखा होता when a person is broken, है, जब एक व्यक्ति टूटा होता है he cannot call to people. तो वो लोगों को देखिए So whom does he call? तो किसे पुकारेगा? He calls God. वो परमेश्वर पुकारेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? चिड़िया जब भूखी होती है ना, तो दूसरे चिड़िया को वो माँ को देखती है, माँ कुछ देगी। कितने लोग देखा है? हम लोग ना बहुत एकदम हौली लड़के लोग थे। हम लोग ना पेड़ पे चढ़ते थे ना और देखते थे क्या कर रहे हैं। हम लोग गांव के लड़के लोग रे बाबा, आप लोग सब कंप्यूटर खेलने वाले लड़के लोग। हम लोग के पीछे, जॉन को पूछो, हम लोग के पीछे वॉचमैन लगता था, उधर नीचे। हम लोग उसको बोलते थे दबे तो तू ऊपर आके बता। वो वॉचमैन अंकल, प्रीमियर का अंकल, वो बोलता था ये लड़के लोग बहुत पागल है। हम लोग चिंच बोरा बेरा तोड़ने के लिए चप्पल विप्पल मारते थे किसके। I'm telling you, ऐसा बदमाशगिरी करते थे। Anyway, listen to this. सुनिए। So when a person is hungry, तो जब कोई व्यक्ति भूखा होता है he cries out to God. वो परमेश्वर को पुकारता है, बोले प्रभु, कहता है प्रभु नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, जेवण नहीं है, खाना नहीं है, जेवण दे प्रभु, खाना दे प्रभु। बॉस काही नाही करू शकत. Boss They कुछ remember God that time. उस समय परमेश्वर याद करेंगे। Hello. Yes, now listen. अब सुनिए, But लेकिन when a person is full, जब व्यक्ति का पेट भरा होता है, पूरा भरा हुआ है, जेब में पैसा है, माल है, he forgets God. वो परमेश्वर को तब भूल जाता है। Come on, help me now. मदद करें अब। I want to tell everyone that is watching me. हर कोई जो देख रहे हैं उसे कहना चाहते Don't get scared by what is coming, because in these times your faith is going to grow. हैं और जो आ रहा है उससे डरे नहीं, लेकिन इस दौर में जो आपका विश्वास बढ़ेगा। I don't want to come with a message of fear. I want to come with a message of hope in Jesus' डर name. का संदेश लेकर आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन Yes, आशा भरे संदेश को आपके सामने something पेश कर is coming. I don't know. I just told you. See, people say something is coming. अरे तू इतना बड़ा prophet है तो बता ना क्या आ रहा है. I'm telling you, yes, some currencies are going to lose. Some things are going to happen. Things are going to change. But the good news is, अच्छी खबर ये है, the church is going to grow. कलीसिया बढ़ने जा रही है People are going to turn to the Lord in record numbers. और लोग भारी संख्या में जो प्रभु के मुड़ने जा रहे हैं। Somebody lift your hand and shout a big hallelujah. तो अपने हाथ में चिल्लाएं जोर से I said हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Yes, there will be a mighty move of God. यहाँ परमेश्वर की बड़ी एक क्रांति आ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। As the darkness grows over the world, और जैसे अंधकार पूरी दुनिया में फैलता the है, light will shine brighter. और उजाला और The ज्यादा Bible says चमकेगा। darkness will cover the earth. बाइबल ऐसा कहती है पूरी पृथ्वी पर जो अंधियारा छा जाएगा, But your light will shine. लेकिन आपका उजाला The light चमकेगा। of God will shine. परमेश्वर का उजाला This चमकेगा। is a good news. ये अच्छी खबर There है। will be such mighty signs and wonders. और ऐसे बड़े जबरदस्त सामर्थ्य It will happen on the streets. It will happen on the airports. और ये हवाई अड्डे पर होगा, सड़कों पर In the होगा। name of Jesus. यीशु के नाम में। Who knows? You will just pray. What happened? Oh, touch. Pah. The Lord will use you. कौन जानता है कि आप Be प्रार्थना ready. करेंगे, किसी को चंगाई Be मिलेगी। ready. तैयार रहना। And then और फिर will come the terrible time. उसके बाद दर्दनाक हालात आएंगे। Pastor, ये दर्दनाक नहीं है तो क्या दर्दनाक है?
Those are watching, listen. और जो देख रहे हैं Remember, याद रखना, remember, when the thing happens, जब चीजें होती if you are watching this video, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि YouTube तो रहेगा और YouTube वाले भी रहेंगे. अब वो भी सुन लो YouTube वाले. Listen to me. सुनिए, Go to the word. वचन में जाएं. Man's word will fail. God, Jesus' words will never fail. इंसान के बोले हुए Can शब्द you lift नाकाम your हो hand जाएगा, if you प्रभु believe in यीशु मसीह Jesus? कभी नाकाम नहीं होगा. Let me see your hand. अपने हाथ उठाएं. Go with me to the book of Matthew 24, verse 37. 37वां वचन. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. As it were days before the flood. What they were doing before the flood? और देखिए उस जल प्रलय से पहले क्या कर रहे थे वो? What they were doing? क्या कर रहे थे? Come on loudly. Eating, वे खा रहे थे, drinking, पी रहे थे, marrying, शादी कर रहे थे, giving in marriage, शादियों में दे रहे थे, and then the flood came. और फिर उसके बाद जल प्रलय In आया. other words, दूसरे शब्दों में there was great prosperity. वहां पर बड़ी एक समृद्धि थी. Come on. When a person, when he has no money, will he eat? बोले आज कौन सा रेस्टोरेंट जाएंगे? वो बोलेंगे सर घर में ही पका दाल रोटी खाएंगे हम लोग. Come on, yes or no? आया नहीं. Yes. When a person loses his job, he will go out of what? Let's go buffet. He will go? No. इसे कल का दाल गरम कर. Come on, hey, हम लोग ने खाया है, हाँ? हमारे मम्मी लोगों ने खिलाया है. Praise the Lord. स्थिति हो. Yes, क्योंकि पैसा नहीं था सर. पैसा नहीं था, सच में नहीं था. हम लोग ने कांदा भाकरी चटनी चपाती पे लोंचा लगा घासून खा ले आम्ही. This is because my mother was poor, my father was poor. But here are the people eating, drinking. लेकिन यहाँ पर देखते हैं लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे पी रहे, पैसा बहुत है, शांति है दुनिया में, शादी कर रहे हैं. जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो बोलता है शादी क्यों नहीं कर रहा है? करूंगा यार करूंगा. एक्चुअली नहीं करता है. क्यों पता है? उसके पास पैसे नहीं है. पैसे नहीं है उसके पास. बाप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करता है? क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास. But here they are marrying, giving in marriage. लेकिन यहाँ पे वो शादी कर रहे हैं, शादी में अपनी बेटी को दे रहे हैं. I want to prophesy. भविष्यवाणी करना चाहते हैं. Don't get scared of what is coming. जो आ रहा है उससे डरे नहीं. Get scared of what is coming after that. उसके बाद जो आ रहा है उससे डरेगा. Because God took care of you during the pandemic. Open your eyes. क्योंकि परमेश्वर ने महामारी Open के your दौरान eyes. आपका ख्याल रखा. He is faithful. This is a message of hope. और ये संदेश The का. bodybuilders died. और जो अच्छे पहलवान लोग But गए, लेकिन you, doctor said you will not live. और डॉक्टर ने कहा था आप नहीं बचेंगे. Oh, but you lived. आप Hallelujah. बच गए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Lift your hand and say, God, you are faithful. परमेश्वर तो विश्वास योग्य है. Hallelujah. हालेलुया. तेरी नौकरी गई, तेरा सब कुछ गया, तेरी कंपनी बर्बाद होगी, लेकिन तू उठ गया. Hallelujah. Somebody lift your hand and say, the Lord, you are faithful. अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु तो विश्वास योग्य I है. want to tell you as God's servant, परमेश्वर के सेवक के रूप में आपसे do कहना not चाहता fear. डरे नहीं. The Lord is holy. प्रभु पवित्र The है. Lord is good. प्रभु भला है. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is mighty. प्रभु सामर्थी He है. has taken care of you. उसने अपना ख्याल रखा He है. will hide you. वो आपको छिपाएगा. Don't fear what is coming. जो आ रहा है उससे डरे नहीं. It is not for the world. People of God, it is for the world. और परमेश्वर के लोगों ये दुनिया के लिए होगा. Are you listening? सुन रहे समय. Goshen, गोशेन. you are safe. आप सुरक्षित You हैं. are safe. सुरक्षित हैं. Lift your hand and say, I am Goshen. अपने हाथ उठाकर मैं गोशेन In हूँ. Christ, मसीह में. you will have a job. You will have money. You will have everything. सब कुछ है. Goshen, Goshen, Goshen. गोशेन गोशेन गोशेन. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. But now hear what the Lord लेकिन आप says. सुनिए जो प्रभु कहता है. Hear what the Lord says. सुनिए जो प्रभु कहता है. Listen. सुनिए. ये 2025 के बाद ये सब चला जाएगा और दुनिया में ऐसी शांति आने वाली है, इतना पीस आने वाला है. ये जो 2024-25 है ना, आज मैं बता रहा हूं आपको. एक्चुअली पहले बताने वाला था. हिलने वाला, सब कुछ हिलने वाला. लेकिन आफ्टर दिस, इसके बाद there's going to be peace. और शांति का माहौल होगा. Hello. People will call it golden age. New age. लोग कहेंगे Golden age. सुनहरा युग People will, है. I didn't say it. Huh? The age of Aquarius. New age theory. मैंने जो बोला है सुन. कितने लोग जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? सुना है ये वर्ड? सुना है ना? It will come. ये आएगा. That time. उस समय Be very careful. बहुत सावधान रहना. That time be very careful. उस समय बहुत सावधान रहना. Church be very careful. कलीसिया बहुत सावधान रहना. Because churches will be filled. कलीसिया का भरी हो. Churches will be filled. कलीसिया भरी होगी. Offerings will come. भेंट अर्पण आएंगे. Everything will happen. सब कुछ चलता रहेगा. Hello. Be very careful. बहुत सावधान रहना. लोगों के जेब पूरे भरे होंगे.
eating, खाने, drinking, पीने में, marrying, शादी करने में, giving in marriage. शादी में अपनी बेटी को देने में। Now, अब many diseases will be healed. बहुत सारी बीमारियां चंगी हो जाएंगी। Today I have spoken, listen to me. आज कहा है सुने, The cure for cancer will be found. और कैंसर रोग का इलाज मिल जाएगा। People will say, now we don't need God. और फिर लोग कहेंगे अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Remember what I said? याद रखना जो कहा है, Remember what I said? याद रखना जो कहा है। And then, और फिर people will be taken care of. Just gone. I'm warning you today. आज आपको चेतावनी देते हैं, I'm warning you today. आपको चेतावनी देते हैं। Today cry out to God. आज परमेश्वर को पुकारिए That Lord, may I not deny you when my stomach is full. और ऐसा कहते हुए कि प्रभु जब मेरा पेट भरा होगा तब मैं When तुझे we are नकारने ना पाऊं। prospering, may I not deny you, my family not deny you. और जब हम समृद्ध हो रहे हैं प्रभु, मैं और मेरा परिवार हम तुझे न नकारें। Help me, Lord. मदद कर प्रभु। This is the message I wanted to convey to you. और ये वो संदेश जो आपके सामने पेश करना चाहते थे Today, आज। I want you to worship with all your heart. चाहते कि पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करिए, Let it come from your heart. और यदि आपके दिल में से आए, Otherwise, sir. नहीं तो जनाब। And then after that, फिर उसके बाद that man will show you his true colors. वो इंसान जो है अपना असलियत का रंग दिखाएगा। Is this blessing you ये आपको आशीष पहुंचा now? रही है। Is this blessing you now? Show his true colors. अपना असलियत का रंग दिखाएगा। It's in the word. वचन में है। You can say what you want to say. आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, But when it happens, कि जब हो जाता है go with your face in the mud and say, Jesus, मुंह you के are बल Lord. आइएगा और कहना यीशु ही प्रभु है।